بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل کرم ہوا کہ اس رب کائنات نے ہمیں رمضان کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس میں مزید اللہ نے ہمیں عبادتوں کی توفیق بھی دی۔ ہم نے اس میں جو ہے روزے رکھے، اسی کے اندر ہم نے تراویح کی نماز ادا کی۔ بہت ساروں نے جو مالدار ہے اللہ نے جنہیں صاحب انصاف بنایا انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ پھر بہت سارے ساتھیوں نے شب قدر کی تلاش کے اندر راتوں میں عبادتیں کی، اور کچھ ساتھیوں نے بہت ساری مساجدوں کے اندر اعتکاف بھی فرمایا۔ یہ ساری عبادتیں ہم نے اس ماہ کے اندر کی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ مالدار کا، نہ کسی غریب کا، نہ کسی بیمار کا، نہ کسی صحت مند کا، کوئی کمال نہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بندے کی طلب ہوتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ بندے کی طلب نہ ہو، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ دین کے اندر اللہ طلب کو دیکھتا ہے، جس کے اندر جیسی طلب ہوگی اللہ اس کے اندر ویسی چیز کو ڈالے گا۔ ہم نے اس کے اندر یہ سوچ لیا کہ بھئی اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے روزے میں نقص آ جائے گا، کمی آ جائے گی، میں دھوکہ دوں گا تو میرے نقص آ جائے گا، کمی آ جائے گی، میں جو ہے غیبت کروں گا، چغلی کروں گا، کسی کے ساتھ بہتان کروں گا تو میرے عبادت کے اندر نقص آ جائے گا، روزے کے اندر۔ ہم نے طلب کی اس چیز کو تو اللہ نے ہمیں اس چیزوں سے بچایا، اللہ نے ہمیں اس چیزوں سے بچایا۔ اب جو ہے ہمارے سامنے اللہ نے یوں فرمایا کہ جب تمہیں رمضان کا مہینہ مل جاوے اور پورا ہو جاوے تو اس کے بعد تمہیں دو عمل کرنا ہے۔ کتنے عمل کرنا ہے؟ دو عمل۔ ایک تو اس رات کے اندر عبادت کرنا ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی جو رات رمضان کے اور عید کے صبح کے درمیان جو رات ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی؟ جو رات رمضان کے اخیر میں اور عید کی صبح میں ہوتی ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کی رات۔ جائزہ کہتے ہیں انعام کو عربی کے اندر، اور لیلہ کہتے ہیں رات کو۔ تو یہ رات جو ہے وہ انعام کی رات ہے، اور انعام اس کو ملتا ہے جو نمبر لاتا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے۔ جو کامیاب نہیں اس کو وہ انعام نہیں ملتا۔ ایک بندے نے پورے مہینے روزے نہیں رکھے، یا تراویح کی نماز ہی نہیں پڑھی، یا جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکہ دینے سے پرہیز ہی نہیں کیا، اب اس رات میں وہ عبادت کرے اس کو وہ بات نصیب نہیں ہوگی۔ جو اس رات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے پورا مہینہ پہلے وہ کام کرنا پڑے گا تاکہ اس انعام کو حاصل کر سکے۔ اور اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، ہم شروع سے جو یہ چیزیں کرتے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو رات ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن کے لیے عبادت کی رات ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہے جس میں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ 5 راتیں ایسی ہے جس میں بندے کی کیا ہوتی ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سب کا روزہ ہے؟ ارے روزہ ہے کہ سب کا؟ تھوڑا بشاشت سے مجھے بولنے میں مزہ آتا ہے۔ تو 5 راتیں ایسی ہے جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فرمایا پہلی وہ رات جو شب جمعہ کی رات ہو۔ کون سی رات ہو؟ جمعہ کی رات ہو، یعنی جمعہ کا دن گزر جائے، سنیچر اور جمعہ کے بیچ میں جو رات ہوتی ہے اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں، اور بہت سارے حضرات اس کو جمعرات اور جمعہ کی رات کہتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ رات جو ہوتی ہے وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے۔ جس دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر جو رات آتی ہے اس رات میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسری رات آپ نے فرمائی یہ جو ہے شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات، 15ویں تاریخ کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں بھی اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کون سے مہینہ آتا ہے؟ شعبان سے رجب کی پہلی تاریخ کی جو رات ہوتی ہے اس رات کی بھی اللہ بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کتنی راتیں ہو گئی؟ 3 راتیں ہو گئی۔
है ना, रजब की पहली रात और शाबान की 15वीं रात और जुमा की रात, ये 3 रातें, और ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की रातें। ये रातों के अंदर भी बंदे की अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। क्या करता है अल्लाह? दुआओं को। अब ये रात हमारी दुआएं कबूल करने की है। हम इस रात में पूरा मार्केट में घूम लेंगे, पूरा मार्केट में टाइम पास करेंगे। खरीदना कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट में टाइम पास, वह खरीदना है, वो उसकी मजबूरी है, ठीक है, खरीद रहा है तो थोड़ा बहुत अलग बात है। थोड़ा वक्त गुजर गया, 1-2 घंटे आदमी इधर उधर मार्केट में, वो अलग बात है, उसकी जरूरत कोई है। लेकिन पूरी रात जानबूझकर टाइम पास करना, पूरी रात जो है खाली उसके अंदर गुजार देना, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि हदीस पाक के अंदर ये रात बड़ी इनामों वाली रात है। अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों से कहा रोजा रखकर भूख और प्यास को बर्दाश्त करो। उन्होंने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। मैंने कहा रात का कयाम करो, उन्होंने रात को कयाम किया। 4 रकात ईशा की पढ़ते नहीं, लेकिन 20-20 रकातें पढ़ रहे, तो मुजाहिदा हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों ने इतना मुजाहिदा किया है, तो बोलो उनको क्या करना चाहिए? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह अब उन्होंने अपनी मजदूरी पूरी कर ली है, उनको उनकी मजदूरी मिलना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिर मैंने अपने बंदों को जहन्नम से आजाद कर दिया। और इस रात में फिर बंदा इबादतें करे, फिर दुआएं करे, तो अल्लाह फौरन उसकी दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह फरमाता है बंदे मांगता जा, मैं तुझे देता जाऊंगा। आखिरत की वो सारी चीजें, हदीस पाक के अंदर है जुमला है, आखिरत की अल्लाह वो सारी चीजें देगा जो बंदा दुआ में मांगेगा, लेकिन दुनिया की वो सारी चीजें नहीं देगा जो बंदा दुआ में मांगेगा। दुआ के अंदर जो बंदा दुनिया की चीजें मांगेगा, मसलहत के एतबार से अल्लाह उसको देगा। अगर इसके हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह उसको नहीं देगा। हम बेहतर जानते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है? बोलो कौन जानता है? अल्लाह जानता है। अगर मेरे हक में जो मेरा मांगा हुआ बेहतर है दुनिया का, तो अल्लाह देगा। अगर हक में मेरे बेहतर नहीं है, उसमें मेरे लिए नुकसान है, आगे चल के मेरे लिए जो है वो मुफीद नहीं है, फायदा मंद नहीं है, तो अल्लाह मुझे वो नहीं देगा दुनिया के अंदर। लेकिन आखिरत की हर वो चीज देगा जो बंदा अल्लाह से मांगेगा। इसलिए कि आखिरत की हर चीज बंदे के लिए बेहतर है। आखिरत की हर चीज बंदे के लिए बेहतर है। इसलिए इस रात के अंदर खूब इबादतें करे। क्या करे? खूब इबादतें करे। इबादत से मुराद ये नहीं कि पूरी रात इबादत करना ले। अगर अल्लाह ने तौफीक दी अच्छी बात है, नहीं तौफीक हुई तो चंद देर इबादत करे, थोड़ा मार्केट घूम लो, फिर इबादत करो, फिर मार्केट घूम लो, या फिर सो जाओ। सहूलत अल्लाह ने सबको दी है, सहूलत का फायदा उठाया करो। इस्लाम के अंदर जहाँ सहूलत नहीं है उसका फायदा नहीं उठाना। अल्लाह ने अगर सहूलत दी है उसका फायदा इस्लाम के अंदर उठाना भी चाहिए। फिर इसके बाद आएगा ईद का दिन। अब ईद का अगला दिन है, इसमें अल्लाह को 2 चीजें पसंद है। क्या पसंद है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की तकबीर को बयान करना, अल्लाह की बड़ाई को बयान करना। यानी जब हम ईदगाह के लिए जाए तो क्या पढ़ते हुए जाए? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि बंदा अल्लाह की बड़ी तारीफ करे। इसने मुजाहिदा किया, तकलीफ दे रही, लेकिन कह रहा मेरा अल्लाह बड़ा है, तो अल्लाह बड़ा खुश होता है। क्या होता है? अल्लाह बड़ा खुश होता है। और फिर फरमाया दूसरी चीज है इस्तिग़फ़ार करना। दूसरी चीज है इस्तिग़फ़ार करना। रास्ते से आते आते सिर्फ ये बातें नहीं करना कितना मजमा था, क्या जबरदस्त मौलाना ने बयान करे, और क्या लोग गाली गलौज कर रहे थे, और क्या चिल्ला रहे थे कि 8-8:30 बज गए, जमात खड़ा करो खड़ा करो। ये सब तस्करे छोड़ना, इस्तिग़फ़ार करते हुए आना, बाद में करना। ये सारे तस्करे समझ में आ रही? सवाब कमाना है, ये दिन होते हैं इसके अंदर बेहतरीन सवाब हमें मिलता है और बेहतरीन चीजों का फायदा उठाना है। समझ में आ रही? लाड के अंदर हमको अल्लाह सवाब दे रहा है, करोड़ों के अंदर सवाब दे रहा है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। और ईद के दिन क्या सुन्नत है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईद उल फित्र की नमाज को जाने से पहले कोई मीठी चीज खाना सुन्नत है। ये हमारे घरों से निकल गया। जो बूढ़े औरतें थी, बूढ़ी जो है खवातीन थी, बूढ़े मर्द थे, वो लोगों पर एकदम जो है ना इसको बहुत सख्ती से करते थे। घर में पहले से खवातीन जो उठती थी तो वो क्या कर लेते थे? दूध गर्म करते थे, उसमें खजूरें छोड़ देते थे और जाने से पहले ताकीद से खिलाते थे कि इसको खाकर जाओ। वो सुन्नत अदा कराते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनको पढ़ा लिखा इल्म नहीं था, इतने बयानात नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ज़ौक़ और शौक दिया था सुन्नतों का अमल का, तो वो लोग करते थे। तो मीठी चीज खाकर जाना क्या है? सुन्नत है। मीठी चीज खाना या मीठी चीज पी कर जाना सुन्नत है। एक रास्ते से जाना सुन्नत है, दूसरे रास्ते से आना सुन्नत है। तकबीर पढ़ते हुए जाना, इस्तिग़फ़ार करते हुए आना सुन्नत है। अच्छा लिबास पहनना सुन्नत है, इत्र लगाना सुन्नत है, सुरमा लगाना सुन्नत है, और अच्छी ज़ेब व ज़ीनत के साथ जो है जाना
ये सारी चीजें सुन्नत है। कैसी है? सुन्नत है। वक्त से पहले पहुंच जाना सुन्नत है, वक्त के खत्म होने पर या वक्त के बाद पहुंचने पर वहां जाकर चीखो पुकार करना ये सुन्नत नहीं है, वक्त से पहले पहुंच जाना चाहिए, ये सुन्नत है। समझ में आ रही बात? और इसी तरीके से सदका फित्र अदा करना सुन्नत है। सदका फित्र अदा करे, सदका फित्र आदमी अपने माली एतबार से अदा करे। जैसे हम शादियां कर रहे, मैं मालदार हूं तो मेरे घर की शादी बड़ी आला होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, वैसी होना चाहिए, तो वैसे सदका फित्र भी अदा करा करे, अपने आप को मालदार समझा करे सदका फित्र के अंदर। सदका फित्र में आगे गरीब हो जाते और शादी आती तो मालदार हो जाते। अरे बात समझ में आ रही? सदका फित्र 4 चीजों का हुक्म हदीस पाक के अंदर है। एक खजूर है, जौ है और किशमिश है, और क्या है चौथी चीज? बोलो। मनुक, मनुक मैं भूल जा रहा। एक खजूर है, जौ है, मनुक है और किशमिश, ये चौथी चीज गौ, गौ है। तो ये 4 चीजें है। पनीर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अदा किया है। पनीर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 1-2 दफा जो है सदका फित्र में अदा किया है। तीनों इमामों के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो यही 4 चीजें 5 चीजें दे सकते हैं। लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, सदका फित्र है वो लोगों की जरूरत के एतबार से है, ताकि गरीबों की जरूरत पूरी हो जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है वो हवाइज के एतबार से, जरूरत के एतबार से, तो आदमी उसका पैसा भी अदा कर सकता है, जरूरतमंद को उसकी जरूरत भी पूरी कर सकता है, तो आदमी उसमें पैसे भी दे सकता है। अल्लाह ने अगर करोड़ों दिया है तो किशमिश का, खजूर का दे। ये तीनों का निसाब एक है, याद रखिए, किशमिश का, खजूर का और जौ का, ये तीनों का निसाब एक है। 3.5 किलो देना है आपको। कितने देना है? 3.5 किलो एक आदमी की तरफ से देना है। और गेहूं का जो निसाब है वो 2.25 किलो से 2 किलो है। बेहतर है 2 किलो दे दे, 2 किलो देना चाहिए। और आज के दौर में 2.25 किलो देना चाहिए। क्यों? बदला नहीं है वो, लेकिन हमारा जो वजन है वो छोटा हो गया है। क्या हो गया है? बोलो क्या हो गया है? अरे दुकानदार है ना, दिख रहा है 1 किलो वो, लेकिन वो 1 किलो से थोड़ा कम हो गया है। 2 किलो है लेकिन थोड़ा कम हो गया है वो। पहले के मुकाबले में देखो, पहले जिसके पास होगा ना 20 साल 30 साल पुराना वजन और आज का वजन देखो, तोल कर देखो, आपको फर्क पता चलेगा, है ना? फर्क है ना? हाँ, फर्क है उसके अंदर। तो हम अगर अदा करेंगे तो कैसे अदा हो जाएगा फिर? तो इसलिए थोड़ा बढ़ता हुआ दे, एक आदमी की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, बीवी की तरफ से अगर अदा कर रहे हैं, साहिब निसाब है, तो उससे पहले इजाजत ले ले कि मैं तेरी तरफ से सदका फित्र अदा कर रहा हूं। उससे इजाजत लेकर अदा करे, बगैर इजाजत के अदा नहीं करना। वैसे बगैर इजाजत के अदा करेंगे, उलमा ने फरमाया वैसे अदा नहीं होगा। घर में कहते कि भाई सबकी तरफ से मैं सदका फित्र अदा कर रहा हूँ और फिर अदा कर दे। तो आज के दौर में जो गेहूं हम खाते हैं वो गेहूं का पैसा भी अदा कर सकते हैं। 30 रुपए 32 रुपए किलो के एतबार से एक आदमी को 60 रुपए आएगी, तो 70 रुपए अदा करे, वजन के एतबार से 70 रुपए अदा करे। और जो गेहूं, खजूर और किशमिश अदा करना चाहते हैं, जिन्हें अल्लाह ने बहुत माल दिया है, वो उसके एतबार से अदा करे। बात समझ में आ गई सबके? अरे आया मसला समझ में आया? उसके एतबार से ही अदा करे और फिर जो है अपनी ईद को खुशियों वाला बनाए। लोगों से ताल्लुकात, सलाम, दुआ, मिलना मिलाना और बहुत सारी बातें जो है हम सोशल मीडिया के जरिए या दीगर चीजों के जरिए सुनते रहते हैं कि साहब गले मिलना वो बिदात है ये। अरे एक दिन तो लोग गले मिलते हैं, उसके बाद कहाँ गले मिलते हैं लोग? मिले क्या हरज है? 10 से मिलेगा, 20 से मिलेगा, मरते नहीं जाएगा। बहुत लोग उसको ये समझते हैं जायज है, वो मिल सकते, कोई मसला नहीं है।